ग्रीटिंग्स एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। और आज हम पढ़ेंगे गार्नर वर्सेस मुरेज रूलिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर। नाउ बिफोर वी टेक अप दिस, लेट अस अंडरस्टैंड वन थिंग। एक चीज़ हमें समझ लेनी है कि इंसॉल्वेंसी के केस में नंबर वन थिंग इज व्हेन द इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर इज रेलेवेंट. Okay, so you are to first establish number one that partner is insolvent. And why is it relevant? It is relevant when there are two conditions being satisfied. Number one, partner is to bring money, that is you are getting a difference on the credit side. He is to bring money into the firm. Secondly, he cannot bring that amount. So if he cannot bring that amount in full, then we say that it is the case of insolvency of a partner. So insolvency's consequence is that we have got a capital loss arising out of insolvency. So due to insolvency of the partner, we have got capital loss which is equal to the amount that partner cannot bring, right? Now once this is established, then we'll have to account for insolvency. Now while doing the accounting for insolvency, we'll have to first see that is there any provision given. If any provision is given in the question, then we follow that provision. That is, if your question says that partnership deed provides that any capital loss arising on account of insolvency shall be distributed or borne by the remaining partners in say equal ratio, then you need to follow it. Then you don't need to look further. However, if there is no such provision, that is partners have not made any provision regarding the distribution of this capital loss, तो उस केस में हमें क्या करना होगा? Then we are to follow गार्नर वर्सेस मुरेज रूलिंग. सो ये नहीं होगा कि हर क्वेश्चन में ये रूलिंग फॉलो होगी. ये तभी फॉलो होगी जब हमारे पास कोई प्रोविजन नहीं है. अगर आपका क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा तो इसको फॉलो कर लो, ठीक है. So let us go through these points again. Insolvency relevant कब होती है? When partner has a liability towards the firm, that is his debit total is more than credit total. उसके कैपिटल अकाउंट में जो डेबिट टोटल है वो ज़्यादा है, उसकी ड्राइंग्स ज़्यादा है, लॉसेस ज़्यादा है, तो उसे फर्म में पैसा लेके आना है. ही कैनॉट ब्रिंग द मनी इनटू द फर्म. जितना रिक्वायर्ड अमाउंट है वो नहीं ला पा रहा है. सो इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए? नंबर वन, इट इज़ द कैपिटल लॉस. कैपिटल लॉस क्या हो गया? अमाउंट दैट द पार्टनर कैनॉट ब्रिंग. सो अब उसे किस रेशो में बांटेंगे? अभी मैंने बताया, अगर कोई प्रोविजन है तो उसी को फॉलो करो, उस रेशो में बांट दो. But if there is no provision, then we have Garner versus Murray's ruling. Now the question arises, what is this Garner versus Murray's ruling, and who were these two persons? Basically, there was a firm in Britain. There were three partners: Garner, Murray, and Wilson. These were three partners. Now Wilson became insolvent. Okay, and they applied for dissolution of the firm. Now due to insolvency of Wilson, he could not bring some amount. Let us assume say he was not able to bring 10,000. Okay, now Garner said that let it be distributed in say P&L ratio, whereas the other person was of the opinion that this is not a normal loss. ये कोई बिजनेस का ट्रेड का लॉस नहीं है. इट्स नॉट अ ट्रेडिंग लॉस कि हम इसे P&L रेशो में बांटें. सो ही सेड कि इट इज़ अ कैपिटल लॉस. It is arising because of insufficient amount in the capital. So as a capital loss, it should be distributed in capital ratio. सो इसमें क्या हो गया कि जिसकी कैपिटल ज़्यादा होगी उसको ज़्यादा लॉस बियर करना पड़ेगा कैपिटल रेशो में, और P&L रेशो में क्या है कि जिसका प्रॉफिट्स में शेयर ज़्यादा है उसको ये लॉस बियर करना है ज़्यादा में. सो दे कुड नॉट सेटल ऑन एनीथिंग. ये रेशो सेटल नहीं हो सकी. सो देन दे वेंट टू द कोर्ट, और वहाँ पे कोर्ट ने ये डिसीजन दिया, ये रूलिंग दी कि सिंस दिस इज़ अ कैपिटल लॉस अराइजिंग बिकॉज ऑफ आपका एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो है वो सिनेरियो है, ये नॉर्मल नहीं है. सो इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन कैपिटल रेशो. एंड नॉट ओनली दिस, रूलिंग में ये जो लॉस है कौन बेयर करेंगे, रेशो कैसे डिसाइड होगी, एवरीथिंग वाज गिवन इन वेरी क्लियर टर्म्स. सो सी, बिफोर वी टेक अप दैट रूलिंग, लेट अस अंडरस्टैंड
सेम सिनेरियो जो लास्ट केस में था, यहाँ पर ए तो सॉल्वेंट है क्योंकि उसको पैसा मिलेगा। बी और सी की पोजीशन चेक करते हैं, तो बी के पास क्या है, ही इज़ हैविंग ओनली 500 रुपीज़, सो बी कैन ओनली ब्रिंग 500. C is having out of 8,000 he can pay his liabilities, now he is having 6,000, so C अपना पैसा पे कर सकते हैं. So insolvency किसकी establish हुई, B is insolvent. हमने insolvency establish कर ली. He is insolvent, he is to bring money, he cannot bring the full amount. So इसके consequences क्या हो गए, capital loss आ गया. कितना, आउट ऑफ 2000 ही कैन ब्रिंग ओनली 500, तो कैपिटल लॉस हो गया 1500. अब ये लॉस कौन कौन बियर करेगा, ये बियर करेंगे ए और सी, और वो किस तरह से बियर करेंगे, किस रेशो में करेंगे, उसके लिए क्या है, अगर आपके कोई प्रोविजंस नहीं है, यू आर टू फॉलो गार्नर वर्सेस मुरेस रूलिंग. तो अब रूलिंग क्या कहती है, इन दिस केस द डिसीजन वाज, now we are to focus on some important aspects which your question is ruling is giving. The deficiency in the insolvent partners capital account, that is capital loss. So first thing they are specifying is that we need to remember what is the capital loss. Capital loss is the amount that he cannot bring. Now it should be borne by whom, remaining solvent partners. So it doesn't say by the remaining partners, it says remaining solvent partners. So out of the remaining partners you will have to check position of every other person, and whosoever is solvent they will be bearing this loss in capital ratio. किस रेशो में, इन द रेशो ऑफ कैपिटल. ओके, एंड आफ्टर they have given a condition, after each partner has brought in cash equal to his share of loss of realization. मतलब पार्टनर्स ये लॉस तब बियर करेंगे जब वो अपना जो लॉस है वो अपना लॉस लेके आ गए हैं इन द बिजनेस इन फॉर्म ऑफ कैश. मतलब आप जब भी इंसॉल्वेंसी की वर्किंग करेंगे तो गार्नर वर्सेस मुरे की रूलिंग के अकॉर्डिंगली सबसे पहले the partners shall have to bring cash equal to their loss of realization. जितना उन्हें रियलाइजेशन में लॉस मिला है सबसे पहले वो लेके आने. उसके बाद फिर आप कैपिटल लॉस कैलकुलेट करो, फिर आप सॉल्वेंट पार्टनर्स डिफाइन करो, उनको आइडेंटिफाई करो और उनकी कैपिटल रेशो सॉल्व करो. ठीक है, और इस रेशो में ये लॉस बांट दो. तो ये 4 चीज़ें हैं, ये प्रिलिमिनरी हो गया और ये बाकी के स्टेप्स हैं. आप इसमें यहाँ पर भी लिख सकते हो 1 2 3 4. ठीक है, सो यू कैन से कि आपका डेफिशिएंसी आ गई. ठीक है, इट इज़ टू बी बॉर्न बाय रिमेनिंग सॉल्वेंट पार्टनर्स और इट इज़ इन द कैपिटल रेशो एंड आफ्टर मेकिंग अप ऑफ द लॉस. सो सबसे पहले पार्टनर्स विल ब्रिंग कैश, फिर डेफिशिएंसी मेजर करो, कैपिटल लॉस कैलकुलेट करो और उसको कैपिटल रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करो. राइट, सो हमारे स्टेप्स क्या बने एज पर दिस रूलिंग, और यहाँ इन्होंने कैपिटल रेशो के लिए भी क्लियर कट स्टेप्स बताए हैं. स्टेप 1 इज सॉल्वेंट पार्टनर्स आर टू ब्रिंग कैश इक्वल टू देयर शेयर ऑफ लॉस ऑन रियलाइजेशन. सो जब आपने उन्हें लॉस बांटा है उसकी कैश लेके आएंगे. रिमेंबर इट इज़ सेइंग ओनली अबाउट द लॉस, तो अगर लॉस नहीं है, रियलाइजेशन में प्रॉफिट है, तो ये स्टेप नहीं होगा. सेकेंड स्टेप है आपका इंसॉल्वेंट पार्टनर ब्रिंग्स इन कैश एज पर इज अवेलेबिलिटी. सो जितनी कैश वो ला सकता है उसको लाने दो. नाउ कैलकुलेट कैपिटल लॉस. तो जो अमाउंट ही कैनॉट ब्रिंग वो कैपिटल लॉस है, दैट इज डेबिट माइनस डेबिट बैलेंस, जो बैलेंस बच गया माइनस द कैश दैट ही कैन ब्रिंग. सो अगर उसका बैलेंस बच रहा है मान लो 5000 एंड ही कैन ब्रिंग ओनली 1500, सो आउट ऑफ 5000 ही कैन ब्रिंग 1500, आपका लॉस हो जाएगा 3500 का. ठीक है, अब इस लॉस को, कैपिटल लॉस को रिमेनिंग सॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल रेशो में बांटेंगे. तो आप सॉल्वेंट पार्टनर्स आइडेंटिफाई करो. सॉल्वेंट पार्टनर्स कौन होते हैं, जिनके पास पैसा है, जो सॉल्वेंट हैं, है ना, जो अपनी लाइबिलिटीज पे कर पा रहे हैं. Determine capital ratio. Now while calculating the capital ratio, clear guidelines are given based on the type of capital. So if your capitals are fixed, then this is the ratio of fixed capital. मान लो आपका क्वेश्चन जो है, आपके क्वेश्चन में बैलेंस शीट इस तरह से दे रखी है. कैपिटल है ए बी सी की, सपोज 10,000, 15,000 एंड से 5,000. ओके,
नाउ वी आर गिवन करेंट अकाउंट्स, बिकॉज फिक्स्ड कैपिटल का मतलब क्या होता है कि करेंट अकाउंट दे रखे हैं. मान लो ए और बी का करेंट अकाउंट है 2000 1000 और सी का करेंट अकाउंट जो है वो डेबिट बैलेंस है से 2000. ठीक है. नाउ वी आर गिवन दैट सी इज इंसॉल्वेंट. ओके, सो सी इंसॉल्वेंट हो गया तो रिमेनिंग पार्टनर्स के बारे में कुछ नहीं बता रखा. दैट मीन्स ए और बी दोनों ही आपके सी इंसॉल्वेंट है तो ए और बी सॉल्वेंट पार्टनर्स हो गए. तो उनकी कैपिटल रेशो क्या होगी? कैपिटल रेशो इज द रेशो ऑफ फिक्स्ड कैपिटल. तो क्योंकि कैपिटल और करंट अकाउंट दे रखे हैं तो कैपिटल आपकी फिक्स हो गई. तो ए और बी की फिक्स्ड कैपिटल की रेशो क्या आई? 10:15. सो 2:3. तो रेशो हो जाएगी इनकी 2:3. तो ये जो लॉस है वो इस रेशो में बट जाएगा. नेक्स्ट है, अगर हमारी कैपिटल फिक्स ना हो, कैपिटल फ्लक्चुएटिंग हो, देन व्हाट विल वी डू? नाउ इफ द कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग तो कैपिटल रेशो क्या होती है? इट इज़ द रेशो ऑफ कैपिटल क्लेम्स ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन. मतलब आपकी बैलेंस शीट में जो टोटल कैपिटल क्लेम बन रहा है वो होगी आपकी कैपिटल रेशो का बेस. सो इस केस में क्या होगा? मान लो हमारी बैलेंस शीट इस तरह से दे रखी है. कैपिटल्स हैं सेम ए बी सी की 10,000 15,000 एंड 5,000. ओके, अब ये हो गया 30,000. सपोज वी आर गिवन रिजर्व ऑल्सो. मान लो ये इक्वल पार्टनर्स हैं, मैं थोड़ा सिंपल कर रही हूँ क्वेश्चन. इक्वल पार्टनर्स हैं सो रिजर्व है सपोज 15,000. ओके, दूसरी तरफ हमें ड्राइंग्स भी दे रखी हैं. मान लो ड्राइंग दे रखी है ए और बी की 1,000 एंड 5,000. ठीक है, ये बैलेंस शीट में दे रखा है पार्टनर से रिलेटेड. ऑल राइट, नाउ हाउ विल वी डिटर्मिन कैपिटल रेशो? तो अब कैपिटल रेशो क्या है? रेशो ऑफ कैपिटल्स ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन. मतलब डिसोल्यूशन की डेट को, इस डेट को जो इनकी कैपिटल के क्लेम है वो होगी उनकी कैपिटल रेशो का बेस. तो आप कैलकुलेट करो ए और बी की कैपिटल क्लेम्स. कैपिटल क्लेम कैसे निकालते हैं? आप यहाँ से सब कुछ लो. तो कैपिटल बैलेंस दे रखा है 10,000 15,000. रिजर्व दे रखा है. अब अगर रिजर्व आप पार्टनर्स में बांटते हो, 3 पार्टनर हैं, इक्वल रेशो में आप बांट दो तो ये रिजर्व मिल जाएगा 5,000 5,000 इन दोनों को. सी का हम ले नहीं रहे हैं ना, सी इंसॉल्वेंट है. सेम एग्जाम्पल कैरी किए. अब ड्राइंग भी दे रखी है सो लेस ड्राइंग, सो 1,000 एंड 5,000. ओके, सो इनका कैपिटल क्लेम कितना बना? कैपिटल क्लेम ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन. मतलब डिसोल्यूशन की डेट पर कैपिटल क्लेम कितना बन गया? 14,000 एंड 10,000. तो रेशो कितनी आ गई? 7:5. 7:5 रेशो है. तो अब ये जो कैपिटल लॉस है ये इस रेशो में बटेगा. तो ए का शेयर कितना हो जाएगा इस लॉस में? 3,500 इंटू 7/12 और बी का शेयर कितना हो जाएगा? 3,500 इंटू 5/12. ठीक है, तो इस रेशो में आप इसको बांटेंगे. सो अराउंड ये आ जाएगा 1459 और यहाँ पर आ जाएगा 2041. तो ये हो गए इनके शेयर ऑफ लॉसेस. सो कैपिटल रेशो कैसे सॉल्व करनी है? कैपिटल रेशो सॉल्व होगी ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल क्लेम ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन. मतलब आप बैलेंस शीट में से इनके कैपिटल के सारे अमाउंट्स पिक कर लो और उनकी रेशो सॉल्व कर लो. सो इसके बाद जो हो रहा है, इफ़ दे आर टेकिंग ओवर एनी एसेट, इफ़ दे आर टू बी पेड समथिंग एल्स, वो नहीं लेना, सिर्फ बैलेंस शीट की डेट को लेना है. अब लॉस शेयर कर दिया, सो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ये लॉस हमने कैपिटल रेशो में. अब इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? नाउ इफ़ इट इज़ अ लॉस बीइंग बॉर्न बाय रिमेनिंग सॉल्वेंट पार्टनर. जब हम किसी भी पार्टनर को लॉस देते हैं तो उनको क्या करते हैं? डेबिट. सो बाकी के जो पार्टनर हैं हु आर बियरिंग द लॉस, उनके अकाउंट्स हो जाएंगे डेबिट और जो इंसॉल्वेंट पार्टनर है उसका अकाउंट क्लोज हो जाएगा क्रेडिट करके. ठीक है, सो सॉल्वेंट पार्टनर्स टू इंसॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. सो इस तरह से हम इसको रिकॉर्ड करते हैं. सो आई होप ये इसकी वर्किंग आपको क्लियर है. सो लेट अस कंसिडर द सेम प्रीवियस एग्जाम्पल. थोड़ी और हमारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी. जो पिछला हमने एग्जाम्पल लिया था ये इनकी पोजीशन है. ठीक है, तो फाइनली बी एंड सी वर टू ब्रिंग मनी एंड ए वाज टू बी पेड मनी. सो यहाँ इनकी प्राइवेट पोजीशन क्या दे रखी है कि
पोजीशन थी हमारा कि बी वॉज एबल टू ब्रिंग ओनली 500, तो बी का 500 आएगा, सी सब कुछ ला सकते हैं, ठीक है। तो अब जो बी का कैपिटल लॉस है वो कितना हो गया 1500। नाउ दिस विल बी बॉर्न बाय रिमेनिंग सॉल्वेंट पार्टनर्स। तो रिमेनिंग सॉल्वेंट पार्टनर्स कौन से हैं आपके ए एंड सी, क्योंकि सी भी सॉल्वेंट है, वो भी पैसा दे पा रहा है, उसके बाहर भी पैसे हैं। सो ए और सी दोनों सॉल्वेंट हैं, तो ये ए और सी अपनी रेशो में बांटेंगे। सो अब रेशो क्या है, अगर कैपिटल फिक्स है तो जैसे अगर हमें पार्टनर के कैपिटल बैलेंस और करंट अकाउंट बैलेंस भी दे रखा है तो इनकी कैपिटल की रेशो क्या हो जाएगी 20 और 10 2:1। तो ये रेशो ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ये फिक्स्ड कैपिटल हो गई, ठीक है। तो ए का शेयर कितना हो गया 2/3 दैट इज 1000 रुपीज़, बी का शेयर हो गया, सी का शेयर हो गया 1/3 दैट इज 500 रुपीज़। सो अब हम एंट्री कैसे करेंगे यहाँ पर, सो व्हाट वील से दैट यहाँ ये फाइनल पेमेंट ऐसे नहीं होगी ना, यहाँ ये फाइनल होगा क्योंकि अब हमें एडजस्टमेंट्स करनी है। सो आफ्टर रिकॉर्डिंग एवरीथिंग फाइनल पेमेंट हम, क्योंकि हमें क्वेश्चन में पहले ही पता है कि पार्टनर इंसॉल्वेंट है, सो वील नॉट कैलकुलेट द फाइनल पेमेंट्स, हम पहले वर्किंग कर लेंगे और ये हमारी वर्किंग आ गई है। सो नाउ वी विल आस्क दीज पार्टनर्स टू ब्रिंग अमाउंट फॉर द लॉस ऑन रियलाइजेशन। याद रखो गार्नर वर्सेस मुरे की रूलिंग क्या कहती है कि पहले दे आर टू ब्रिंग अप कैश इक्विवेलेंट टू देयर शेयर इन द लॉस। सो ए और सी अपना लॉस का शेयर लेके आएंगे, ठीक है। उसके बाद यू विल आस्क दिस इंसॉल्वेंट पार्टनर टू ब्रिंग द मनी, ही कैन ब्रिंग ओनली 500, बाकी उसका 1500 का लॉस है तो वो लॉस किसको दे देंगे, सो ये बी के कैपिटल अकाउंट में से ए को लॉस मिलेगा 1000 और सी को मिलेगा 500, यही इनके लॉसेस है ना। तो ए और सी को लॉस दे दिया और जो बी का अकाउंट था जिसमें 1500 रुपीज़ का डेफिशिएंसी थी ये ए और सी से मैच कर जाएगी, ए और सी से क्लोज हो जाएगा। सो ए इज़ कैपिटल एंड सी इज़ कैपिटल अकाउंट। अगर आप इसकी जर्नल एंट्री समझो तो ए इज़ कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज़ कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी इज़ कैपिटल अकाउंट 1000, 500 और 1500। सो इसकी पोस्टिंग हमने कर दी। सो इससे क्या हो गया, बी का अकाउंट सॉर्ट हो गया, क्योंकि बी इंसॉल्वेंट था उसका अकाउंट पहले सॉर्ट कर लिया। अब आप बाकियों के फाइनल सेटलमेंट कर लोगे, कैश अकाउंट, फाइनल रिसिप्ट और फाइनल पेमेंट। इस पार्टनर को पे कर दोगे और यहाँ पर अगर इसको लेके आना है या जो भी इनकी पेमेंट्स हैं वो फाइनल एडजस्टमेंट्स कर ली जाएंगी, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ वी वर्क ऑन दिस। बट ये जो रेशो का है, रेशो याद रखो, करंट अकाउंट है तो फिक्स्ड कैपिटल की रेशो सीधे ले लेते हैं, लेकिन अगर यही हमारी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होती तो हमें बैलेंस शीट को रेफ़र करना होगा, ठीक है, और बैलेंस शीट से उनके कैपिटल के क्लेम कैलकुलेट होंगे और कैपिटल क्लेम की रेशो होगी आपकी कैपिटल रेशो। नाउ वी फॉलो दिस रूलिंग, और हमारे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में भी एज सच डायरेक्टली कुछ नहीं कहा है, लेकिन वो इट सिंपली सेज कि पार्टनर्स शुड बी पेड अकॉर्डिंग टू व्हाट इज़ रिलेटिवली ड्यू टू देम ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल। मतलब उनके कैपिटल के अकाउंट पे जो ड्यू है वही उनको पे करना है। दैट मीन्स अगर उन्हें पे करना है तो कैपिटल में क्लेम के बेसिस पे, तो कुछ नहीं पे करना तो वो भी कैपिटल क्लेम के बेसिस पर है। दिस रूलिंग इज़ फॉलोड बिकॉज वी डू नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन, बट इस रूलिंग के कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। लाइक नंबर 1 इज़ द एथिकल इशू। एथिकल इशू क्या है, आपने जब कैपिटल रेशो में लॉस को बांट दिया, इसका मतलब द पर्सन हु हैज़ इन्वेस्टेड मोर कैपिटल ही विल बी हैविंग मोर बर्डन ऑफ लॉस, इजंट इट। उसको लॉस ज़्यादा मिलेगा ना, क्योंकि उसका कैपिटल ज़्यादा है, उसकी रेशो ज़्यादा आएगी। बट डू यू थिंक दैट दिस इज़ अ राइट थिंग? क्योंकि फर्म जब बिजनेस कर रही थी तो उसको जब पैसे चाहिए थे, देयर वाज अ पर्सन हु इन्वेस्टेड मोर कैपिटल, इजंट इट, हु हेल्प द फर्म। अगर वो पैसा ज़्यादा ना लगाता तो फर्म को अपनी ज़रूरत के हिसाब से हो सकता है लोन लेना पड़ता। तो जिस पार्टनर ने इनिशियली फर्म को हेल्प किया, ज़्यादा पैसा लगाया, अब आप उसी पार्टनर पर ज़्यादा लॉस का बर्डन डाल रहे हो क्योंकि उसने ज़्यादा कैपिटल लगाई है। सो दिस रूलिंग इज़ नॉट जस्ट, एथिकली ये जस्टिफाइड नहीं है। अनदर इज़ द प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टी। प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टी क्या होती है कि जब हम रूलिंग के अकॉर्डिंगली कैपिटल रेशो कैलकुलेट करते हैं, बेसिकली ये रेलेवेंट है इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। अब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में आप कैपिटल रेशो कैसे सॉल्व करते हो? यू टेक अप देयर कैपिटल बैलेंस, आप उनकी बैलेंस शीट से उनका कैपिटल बैलेंस लिखते हो, प्लस देयर शेयर इन प्रॉफिट्स और रिजर्व्स डालते हो, ठीक है, माइनस करते हो उनकी ड्राइंग्स,
और उनका शेयर इन लॉस, ये सब चीज़ें हमने कहाँ से ली हैं, बैलेंस शीट से ली हैं। तो कुछ प्लस होते हैं, कुछ माइनस होते हैं। नाउ इफ़ समबडी हैज़ ओवरड्रॉन, किसी ने बहुत पैसा निकाला हुआ है, मान लो ये दो पार्टनर्स थे, ठीक है, अब बी ने ड्राइंग ज़्यादा कर रखी थी, तो जब आपने कैपिटल बैलेंस निकाला, इसका तो क्रेडिट बैलेंस कैपिटल बैलेंस आ गया, बट दिस पर्सन इज हैविंग अ डेबिट बैलेंस, तो अब डेबिट और क्रेडिट की रेशो नहीं हो सकती, तो बिकॉज ऑफ दिस डिफ़िकल्टी बी जो है वो निकल जाएगा कि उसकी रेशो सॉल्व नहीं हो रही है, उसकी तो कैपिटल बैलेंस ही नहीं आ रहा है, उसका तो डेबिट बैलेंस है, तो उसकी रेशो सॉल्व नहीं होगी, है ना। तो इसका क्या इफेक्ट हो गया कि जिस पर्सन ने ज़्यादा पैसे निकाले हुए हैं फर्म से, जिसका डेबिट बैलेंस आ गया, तो उस पार्टनर को आप लॉस दोगे ही नहीं, क्योंकि वो रेशो का पार्ट नहीं हो सकता। बट दिस इज़ अगेन नॉट जस्टिफाइड, क्योंकि आप पहले तो फर्म की हेल्प नहीं कर रहे हो, आप फर्म से ज़्यादा पैसे निकाल रहे हो, उसके बाद अब जिस पर्सन ने हेल्प किया है उसी को ही सारा बर्डन भी मिलने वाला है। दिस इज़ अ प्रैक्टिकल डिफिकल्टी, इसमें किसी का कोई गलती नहीं है, बट द थिंग इज़ कि हम रेशो नहीं ले पा रहे हैं। सो बिकॉज ऑफ दिस ऑल्सो जो कुछ पार्टनर हैं वो फर्म में से बच जाते हैं लॉस शेयर करने से। सो दिस रूलिंग इज़ नॉट जस्टिफाइड, दिस इज़ एथिकली नॉट करेक्ट एंड दिस इज़ नॉट फेयर ऑल्सो। बट द इशू इज़ दैट नो वन हैज़ इन फैक्ट क्वेश्चनड दिस, कभी भी किसी पार्टनर ने या किसी पर्सन ने इस रूलिंग को क्वेश्चन नहीं किया है, सो दिस इज़ ऑलवेज फॉलोड। इसमें पार्टनर्स बस एक चीज़ कर सकते हैं, दैट इन केस दे फोर्सी दिस सिचुएशन, तो वो अपनी पार्टनरशिप डीड में ये चीज़ डाल दें कि हम जब भी कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट होगा तो इंसॉल्वेंसी का लॉस कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो वो इस रूलिंग से बच जाते हैं। फिर वो जो भी उन्होंने अपना रेशो डिफाइन की होगी उसके अकॉर्डिंगली लॉस को बांट लेंगे, ठीक है। बट अदरवाइज ये रूलिंग फॉलो होती है इन स्पाइट ऑफ दीज इश्यूज, दीज प्रॉब्लम्स। सो आई होप दिस गार्नर वर्सेस मुरेज रूलिंग और इसकी अकाउंटिंग आपको क्लियर है। प्लीज़ रिमेंबर, इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर जो है वो बहुत लेट स्टेज में आके आपके क्वेश्चन में इंक्लूड होती है। कब होती है? जब आप कैपिटल अकाउंट पूरे बना चुके हो, जब आप बैलेंस करने वाले हो ना, जब आप उनकी फाइनल सेटलमेंट करने वाले हो, उस टाइम पे आके आपकी इंसॉल्वेंसी अकाउंट्स में रिकॉर्ड होती है, ठीक है। तो उससे पहले हमारा क्वेश्चन एज इट इज़ चल रहा है, क्योंकि उसमें मैटर ही नहीं कर रहा कोई पार्टनर को। जब तक आप पैसा लाने को नहीं बोलोगे किसी को, तब तक हमें क्या फ़र्क पड़ता है उसके पास पैसा है या नहीं है ना। सो इसकी वर्किंग बिल्कुल एंड में जाके आती है, उससे पहले हमारा क्वेश्चन सेम होता है। एंड वेन एवर यू हैव दैट इंसॉल्वेंसी, तो उसको इसी अकॉर्डिंगली आप वर्क करेंगे। सो आई होप दिस रूलिंग इज़ क्लियर टू यू। सो नेक्स्ट टाइम हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ऑन गार्नर वर्सेस मुरेज रूलिंग और ऑन द इंसॉल्वेंसी ऑफ अ partner. So stay learning and practicing, stay happy. Thank you.